So the question which was given yesterday by me was related to Seema. That only I was remembering. Okay? If you remember, in that question, I gave you the condition. The person was getting the salary as usual, but during Deepavali, she got bonus also. Okay? So जो उसकी original salary है बेटा, वो तो रहेगी रहेगी. Plus you are getting the bonus out of it also. So salary plus bonus, and then I have told you to find out the original salary जो उसको मिली उस समय, ठीक है, during Deepavali. So the question which is related to your exercise 8.2 question number 1 is related to that only. But वहां पे difference क्या है? Question related to Seema and question related to a man which is given in the book are having just similarity, but only one difference that आपने फाइंडिंग वैल्यू ऑफ लास्ट सैलरी वो आपने निकाली थी, इसमें आपको दी हुई है, ठीक है, और मैंने आपको सीमा की सैलरी पहले से दी हुई थी, वो इसमें मिसिंग है, ठीक है. फिर से बताते हैं क्वेश्चन को पढ़ के. क्वेश्चन इज टेलिंग इन एक्सरसाइज 8.2 अ मैन गॉट 10% increase in his salary. Fine. This I have given you yesterday also, that what is the bonus part. So 10% यहाँ पे bonus part आपको पहले से पता है, that is this is the increment. Then second part, if his new salary का मतलब है after adding the increment, the new salary is 1,54,000 rupees. You know about the new salary, you know about the increase percent. Now, do you think you are having the value which was the previous salary? You don't have. उसको किस चीज का 10% मिला है? Nobody knows. ठीक है? उसको किस चीज का 10% मिला है? We don't know. So that means it is unknown for us. And if it is unknown for us, you can choose any variable which you want. Fine. So should we try this question? Huh? No, this is same question only I gave you, but I have not told you to solve it. No, I have told you leave the space for 10 line if you remember. You have solved it, wonderful. You just match it. Now listen now. Okay, okay. I have told you to leave 10 lines for that question and try the another one which I am giving you. So that time Seema related question we have done it, and this man question we left it because it was little different. Fine. So just let us try this question. You are knowing increase percent, we know about new salary also, but we don't know कि hike किस चीज पे हुआ है, ठीक है. So सबसे पहले what I am going to do that I am trying to find out the previous salary which is unknown to us. So I am assuming that the previous salary which is unknown, that is X. I have written older salary, or you can also mention previous salary. Fine. So this is salary which is written as X. Now it is telling, इसमें आपको याद होगा जब हमने सीमा वाला क्वेश्चन किया था तो हमने इसी का 10% निकाला था या 20 जो भी दिया था, ठीक है, क्योंकि यही आपकी सैलरी जिसमें इंक्रीमेंट हुआ है. तो इसमें तो ये हमको पता ही नहीं है, तो पहले हम इसका इंक्रीमेंट निकाल लेते हैं. दैट व्हाट इज द इंक्रीमेंट नाउ. सो इट दैट इज 10% of X. So 10% of X means 10 by 100. Of means multiply, X means X. 0 0 get cancelled. It will give you X by 10. This is the increment value जो आपको last time उसमें मिली थी रुपीज में मिला था, ठीक है. 10,000 was I think 10,500 था. Whatever it was given in the question, ठीक है. तो ये हो गया आपका x by 10 the same value. अब आपको क्या पता है इसमें हो क्या रहा है, इंक्रीज हो रहा है. तो इंक्रीज का मतलब होता है एड अप होना. तो इट मींस न्यू सैलरी के लिए क्या करोगे, ये हो गई आपकी ओल्ड सैलरी प्लस ये इंक्रीमेंट हुआ मींस x by 10. देन इंक्रीमेंट होने के बाद व्हाट वाज द टोटल 1,54,000. नाउ सॉल्यूशन कैसे करते हैं इस इक्वेशन का,
I have taught you in chapter linear equation. I am giving you 2 minutes of time. Solve it and find out the value of x, what you are getting right now for this question. So the condition came till here. Now let's solve this. As you are knowing, both are fractions. We will solve it by using the process of LCM. This is 10. It will give you 10x. It will give you simple x. This will be 154,000. ठीक है, ये हो जाएगा आपका पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया आपने तो ये 10x हो गया, दिस इज 1x. नाउ 10x and 1x मिलाकर के हो गया टोटल 11x by 10 is equals to 154 along with 3 zeros. Now this is in 10 multiplication. You will send that side which will go in the form of, sorry, this is in division. It will go that side in the form of multiplication. So यहाँ पर 1 0 यहाँ पर add हो जाएगा तो it will give you 154 4 zeros. ठीक है, ये वाला 10 डिवाइड में वहां जाकर मल्टीप्लाई में होगा ना, तो ये हो जाएगा आपके पास 11x is equals to 154 along with 4 zeros. Now 11x का मतलब होता है 11 into x, which will give you x is equals to 154 4 zeros divided by 11. Now just you simply divide it. 11 ones are 11, 11 fours are 44. Now you have 4 more zeros. 1,40,000 was the salary, which was the previous salary of this person who was given in the question. Now, if you are not understanding how to solve it, it means linear equation is weak. Students, the next question is, on Sunday, 845 people went to the Zoom, 845. Then on Monday, the people were 169 only. Now you can see by just watching only you can come to know that Monday को कितने सारे लोग गए थे Sunday को और Monday को कितने कम हो गए. मतलब यहाँ डिक्रीमेंट हुआ है, नंबर कम हो गए. So नंबर कम हुए मतलब डिक्रीज हुए. तो डिक्रीज हुआ कितना पहले लेट्स फाइंड आउट. डिक्रीज कैसे निकालते हैं? लार्जर माइनस स्मॉलर. So 845 minus 169. What do you say? What? 676. Correct. 676 will be the answer for the decreased value. Now you don't want only decreased value. You want decreased percentage of it. So you have to write it down. I am writing D percentage, that is decreased percent. Now 676. What is the decreased value? Remember, इंक्रीज और डिक्रीज जो भी वैल्यू होती है जिसका परसेंटेज निकाल रहे हैं वो रहेगा टॉप में, बॉटम में रहेगा ओरिजिनल वैल्यू जो कि आपकी डिक्रीज हुई है. सो दैट वाज 845 मल्टीप्लाई बाय 100 and the sign of percentage because you are finding out the percentage. So this is the sign of percentage. Now you solve it, answer will come definitely 80 only. ठीक है? Yes, please. हाँ, so right. So you have noted question wrong ना बेटा. ठीक है? Okay. So remember, how can you cut 845 and 500? दोनों के बीच, दोनों की places, unit place क्या है? 5 है और 0 है. 5 से ही कटेगा. तो 5 से जब तक कटता है तब तक कैंसिल करो. जब ये सिंपल नंबर हो जाएगा तब you can try these two numbers. Fine. This is the method of cutting. हमेशा try करो उन नंबर्स को कट करना जो बड़े नंबर से कट हो सकते हैं ताकि नंबर जल्दी स्मॉल हो जाए. ठीक है? हाँ, you can do that way also. Now let's try the next method because I want to tell you exercise 8.2 contains some of the questions which are related to profit and loss percent and also overhead charges. So let me tell you what are these terms because आपने 7th में भी नहीं पढ़ा था. ठीक है, ज्यादा डिटेल में. So let's try this question in a little detailed way. Okay, now let's understand the concept of profit, loss, percentage, and so many things. Now, always remember, beta, when you talk about profit and loss, remember these are the two concepts which are very, very familiar to us. ठीक है? So let me tell you one by one concept जो आपको बहुत बार सुनने के लिए मिलेगा. For example, आपको पता है जनरली हम जिस भी शॉप में जाते हैं हम कोशिश करते हैं हमें प्रॉफिट हो. ठीक है, तो हम इसलिए वो उन शॉप से सामान खरीदना पसंद करते हैं जहां पे डिस्काउंट आइटम ज्यादा हो
डिस्काउंट का परसेंटेज ज्यादा हो, प्रॉफिट का मार्जिन ज्यादा हो, ठीक है, सो हम उन शॉप्स में परचेजिंग करते हैं। सो ऐसा होता क्यों है? नाउ लुक एट योर, सबसे पहले किसी भी आर्टिकल, आर्टिकल का मतलब क्या होता है? जो भी सामान हम खरीद रहे होते हैं उसे या तो हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं मैथ्स की लैंग्वेज में, या तो हम उसे आर्टिकल बोलते हैं। आर्टिकल नाम से कंफ्यूज मत होइएगा, आर्टिकल का मतलब होता है द ऑब्जेक्ट बाय विच यू आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। तो यहाँ पर सपोज मैं बात कर रही हूँ एक पेन की। नाउ दिस इज एन इम्पोर्टेड पेन विच केम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। नाउ द कॉस्ट ऑफ दिस पेन इज ₹500 written on that, ठीक है, 500 rupees. So now this is called article now, ठीक है। Now this article cost, this is article in the form of a pen and you are knowing the cost of this is 500 rupees which is printed on it. So printed on it मतलब आपने देखा होगा जनरली प्राइस हमेशा प्रिंटेड होते हैं। So yes, हम लोग उसको बोलते हैं MRP, मैक्सिमम रिटेल्ड प्राइस, जस्ट नाउ टोल्ड बाय फरहान एज वेल। इसको MRP के अलावा प्रिंटेड प्राइस भी बोला जाता है, ठीक है, प्रिंटेड प्राइस। हम इसको मार्क्ड प्राइस भी बोलते हैं। ये तीनों नाम एक ही चीजों के हैं, MRP सेम, MP same, marked price, the same is you are I have already talked about printed price, PP, ठीक है, printed price, या अगर हम इसको अनदर नाम में बोले तो हम इसको CP भी बोल सकते हैं। तो कितने सारे नाम हुए? 4 नाम हुए, और चारों के चारों नाम क्या हुए इस पेन के? CP, MP, PP एंड MRP। इन सभी का मतलब हुआ कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है जो किसी ऑब्जेक्ट का ओरिजिनल प्राइस होता है, ठीक है, दिस इज ओरिजिनल प्राइस। नाउ सपोज ये 500 का पेन था और इसको खरीदने जाने के लिए आपको पता चला कि शॉपकीपर ने आपको पहले से बता के रखा है कि ये पेन स्टॉक में आ चुका है। नाउ यू कैन कम एंड टेक दिस पेन, बट यू आर लिविंग इन मुगलसराय, द पेन इज अवेलेबल इन वाराणसी एंड यू वांट दैट पेन, सो यू विल स्पेंड सम मनी फॉर कमिंग एंड ट्रैवलिंग। मान लो 100 रुपीज आपने खर्च किया इस पेन को खरीदने आने के लिए, तो वो भी तो आप ही का पैसा है जो लगा आपका। तो दिस 100 रुपीज जो आप इसमें एक्स्ट्रा स्पेंड कर रहे होते हो फॉर ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, फॉर ओवरहेड चार्ज, फॉर एनी ऑफ द थिंग, इसे बोला जाता है ओवरहेड एक्सपेंसेस। ओवरहेड एक्सपेंसेस जो कि खुद कस्टमर का लगता है, इसमें सेलर का नहीं लगता है, ठीक है, कस्टमर का, जो कि आपने खुद इसमें दिमाग लगाया कि मुझे सामान लेने जाना है तो मुझे इतना पैसा इसमें खर्च करना पड़ेगा, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन। दिस इज कॉल्ड ओवरहेड एक्सपेंसेस। ओवरहेड एक्सपेंसेस समझने के लिए मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगी। फॉर एग्जांपल यू हैव परचेज्ड अ सेकंड हैंड कार 2 लाख रुपीस की, ठीक है, द कार वाज इन वेरी वेरी वेल कंडीशन, बस उसका 1-2 बार एक्सीडेंट हुआ था तो उसका पेंट जो था वो खराब हो चुका था, ठीक है, बट कार वाज एक्सट्रीमली इन वेल कंडीशन, ठीक है। सो यू वांटेड टू परचेज दैट कार, 2 लाख रुपीस तो कॉस्ट हो गया उसका CP, बट आपको उस कार को अल्टीमेटली पेंट कराना पड़ेगा बिकॉज उसका पेंट अब खराब हो चुका है। तो आपने उस कार पे 50,000 रुपीज एक्स्ट्रा खर्च किए फॉर पेंटिंग दैट, ठीक है, आपने उसको यू हैव जस्ट गिवन इट फॉर पेंटिंग पर्पस, so 50,000 रुपीज अगेन यू हैव परचेज्ड ऑन इट। सो यहाँ पर ओवरहेड एक्सपेंसेस कितना हुआ? 50,000, क्योंकि वो आपका लगा, आपकी जेब से गया, और कॉस्ट कितना था? 2 लाख रुपीज। तो मतलब वो कार अल्टीमेटली आपको पड़ी कितने में? 2,50,000 में। तो द सेम वे ये प्राइस और ये प्राइस हमेशा एक दूसरे के साथ ऐड होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपके खर्चा किए हुए पैसे होते हैं ना। तो याद रखो, इसके बाद हम हमेशा निकालते हैं टोटल CP। CP का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, जितना भी आपने उस पर स्पेंड किया, जितना भी आपने उसको पड़ा, आपको खर्च करना पड़ा ना। So this is right now 600 rupees because 500 plus 100. कार वाले केस में 2 lakh plus 50,000 मतलब 2,50,000. Now remember CP के बाद सेकेंड कॉन्सेप्ट आता है SP. SP का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का केवल एक ही नाम होता है SP. CP के कई सारे नाम होते हैं बट सेलिंग प्राइस का केवल एक ही नाम होता है SP, दैट इज सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब ये होता है कि आपको कितने में उसने बेचा, ठीक है, उसने आपको कितने में बेचा। अब ना हो, या अगर आपके पास ये पेन है और आपसे आपका फ्रेंड बोल रहा है कि मुझे ये पेन अब चाहिए, ठीक है, और आपने इसको मेहनत करके लाया है, ठीक है, अब आप क्लास में लेकर आए और आपके किसी बहुत बेस्ट फ्रेंड ने बोला कि मुझे ये पेन दे दो, ठीक है। तो अब आप चूंकि उस बेस्ट फ्रेंड ने बोला तो आपने बोला मैंने इसमें 600 खर्च किए, तुम 600 ही दे करके मुझसे ले लो।
तो तब उस केस में क्या हुआ बेटा, आपने 600 रुपीज का खरीदा, 600 रुपीज में सेल कर दिया, मतलब सीपी एंड एसपी दोनों इक्वल है. सो इन दैट कंडीशन यू हैव नो प्रॉफिट नो लॉस. ठीक है, यू कॉल इट नो प्रॉफिट नो लॉस. दिस कंडीशन गिव्स यू नो प्रॉफिट नो लॉस. व्हेन यू हैव सीपी इज इक्वल्स टू एसपी, यू हैव नो प्रॉफिट नो लॉस. कंडीशन अंडरस्टूड. नाउ अब ये पेन मांगने वाला इस बार आपका दुश्मन है. दुश्मन मतलब बहुत अच्छा फ्रेंड नहीं है, लड़ाई झगड़े वाला फ्रेंड है. तो आप उसने बोला मुझे अब ये पेन चाहिए, तो आपने सोचा ये मेरा फ्रेंड तो है नहीं, नॉर्मल है, ऐसे बातचीत बस होती है, तो ठीक है तुम ये ले लो, बट मैं तुम्हें 800 रुपीज में दूंगा. तुम्हारा फ्रेंड एग्री हो गया कि ठीक है, यू जस्ट गिव इट टू मी बिकॉज दिस पेन इज वेरी नाइस. तो अब इधर पे क्या हो रहा है, आपने इस पेन को 800 में सेल किया, मतलब ज्यादा कौन है, एसपी. सेलिंग प्राइस ज्यादा हुआ. तो जब बेटा एसपी ज्यादा होता है सीपी से, तो उस केस में हमें होता है प्रॉफिट. यहां पर था जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस. ठीक है. नाउ थर्ड कंडीशन. अब जो इस बार आपसे पेन मांग रहा है वो बच्चा क्लास का ही है, बट वो इतना एफर्ट नहीं कर सकता. उसने बोला मेरे पापा मुझे इतनी पॉकेट मनी देती नहीं है कि मैं इतना महंगा पेन खरीदूं, बट मुझे ये पेन चाहिए. और आपने बोला चलो ये मेरी दोस्ती बहुत पुरानी है इससे, तो आई विल गिव हिम द पेन. सो यू विल बी टेलिंग हिम कि चलो ठीक है, मैंने 100 रुपीज इसमें कॉस्ट लगाया था ट्रांसपोर्टेशन का, तो वो 100 रुपीज मत दो, बट मेरा जो एक्चुअल कॉस्ट है वो दे दो. तो आपने उस पेन को खरीद ली, उस बच्चे ने उस पेन को खरीदा 500 रुपीज में. अब इस बार ज्यादा कौन है, एसपी या सीपी? सीपी ज्यादा है. तो जिस बार सीपी ज्यादा होता है बेटा, तो उसे बोला जाता है लॉस की कंडीशन. ठीक है. सो रिमेंबर देयर विल बी थ्री कंडीशन. वन कंडीशन व्हेन सीपी एसपी इज इक्वल, नो प्रॉफिट नो लॉस. व्हेन यू हैव कंडीशन you have SP is greater than CP, that means you have profit. आपने ज्यादा में सेल किया, खरीदा कम में था. ठीक है. थर्ड कंडीशन when you have CP more, SP is less. ठीक है. then you have the condition of loss, कि आपने खरीदा तो ज्यादा में था, बट आपने सेल कम में किया. ठीक है. so remember this is called profit loss concepts. now let me tell you percentage कैसे निकालते हैं इनका. always remember, yes, absolutely. We will find out its percentage the same as we have done it, increase percent and decrease percent. So there are two formulas, profit percent, loss percent. Profit को I have written P%, loss को I have written L%. ठीक है. Now remember, यहाँ हम profit का परसेंट निकाल रहे हैं, तो यहाँ ऊपर क्या रहेगा, profit. यहाँ हम लॉस का परसेंट निकाल रहे हैं, तो नीचे रहेगा लॉस, इसमें ऊपर रहेगा. ठीक है. दोनों ही चीजें किसके लिए होती है, कस्टमर के लिए होती है, जितने में वो चीज खरीदी गई होती है. एक्चुअल प्राइस क्या है, जितने में खरीदा गया है. बेचने में तो हमारा प्रॉफिट ऐड है, कभी लॉस हमारा लगा गया है. तो जो चीज हमारी ओरिजिनल प्राइस है वो हमारी क्या है, हमेशा सीपी. ठीक है. तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास बिलो सीपी, यहाँ पर भी बिलो सीपी. ठीक है. तो फॉर्मूला बिकम प्रॉफिट अपॉन सीपी, ये दिस इज लॉस अपॉन सीपी. और परसेंटेज निकाला कैसे जाता है, multiply 100. So this is multiply 100. Put the sign of percentage. Understood or not? ठीक है. Now should I give you one question for it? Will you try it? You note it down this, and I am giving you one question. Students, I gave you a question for just following up the percentage in loss and percentage in profit. I gave you a question that a person has purchased a flat, second-hand flat at 25 lakh rupees. Okay, this is the cost of flat which he purchased, which the person has purchased. So this is CP1. Okay, CP क्यों, क्योंकि इतने में ही खरीदा गया था. Then it is talking about overhead expenses. Overhead expenses का मतलब होता है, आपको मैंने बताया कि इस पर्सन ने टोटल 5 लाख रुपीस खर्च किए. द पर्सन हैज स्पेंट 5 लाख रुपीस ऑन द फ्लैट टू रिपेयर इट, टू पेंट इट. ठीक है. सो नाउ द टोटल सीपी, बिकॉज अल्टीमेटली बेटा यही जो प्राइस होता है वो कहीं ना कहीं सीपी का ही प्राइस होता है. ठीक है.
ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो इट विल गिव यू सीपी प्लस OHE। OHE का मतलब होता है ओवरहेड एक्सपेंसेस। तो आप, मैं जनरली डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ, 25 लाख ये था, 5 लाख ये हुआ, मिलाकर टोटल कितना हो गया 30 लाख। सो द आंसर वुड बी हियर 30 lakhs rupees. I hope till here it is fine. Now it is telling the flat has been sold at rupees 40 lakh. Fine. So now you are ultimately watching it. CP 30 lakh था, SP 40 lakh है, मतलब 10 lakh rupees का वहां पे प्रॉफिट हो रहा है। तो आपने लिख दिया यहाँ पे SP is greater than CP, we have profit. And how much profit? Profit will be of rupees 10 lakh. अब याद रखो, मैंने तो डायरेक्ट आंसर लिख दिया 10 लाख। कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहां पर 10 लाख आपको डायरेक्ट समझ नहीं आएगा, आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, है ना। तो उस केस में आप सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रॉफिट। नाउ यू वांट प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी। तो प्रॉफिट वाज 10 लाख रुपीज, ऊपर रख दिया हमने। देन सीपी, सीपी वाज द मेन प्राइस। मेन प्राइस बेटा 25 नहीं है, मेन प्राइस 30 लाख रुपीज है। सो ये हो गया 30,000,000 मल्टीप्लाई बाय 100। सो जितने जीरो ऊपर है बेटा वो सारे के सारे कैंसिल हो जा रहे हैं, ठीक है। केवल बच रहा है हमारे पास 100/3, ठीक है। और 100/3 का मतलब होता है इफ यू कन्वर्ट इनटू परसेंटेज इट विल गिव यू 33 whole 1/3 percentage. So either you write 33 whole 1/3 percentage or you write 33.33 percentage. Both will give you the same solution. Okay. Students who are online, have you understood?